CIIE ان مثالوں میں سے ایک ہے جس نے نہ صرف چین کی اقتصادی ترقی میں مدد کی ہے بلکہ بیلٹ اینڈ روڈ سے منسلک ممالک کی مدد بھی کی ہے۔ میرے خیال میں پاکستان بڑی تعداد میں چاول اور پھل چین کو برآمد کر سکتا ہے، خاص طور پر آم۔ چین اتنا خرید سکتا ہے جتنا پاکستان کے پاس ہے۔ ہمیں فوری طور پر کچھ نئے اقسام کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا پیاز جو ہے دنیا بھر میں اس کی ویلیو ایڈیشن بڑھے اور دنیا بھر میں ایکسپورٹ ہو سکے۔ کیا آپ کے ذہن میں کبھی اڑنے والی کار یا پرنٹنگ کے لیے بجلی پیدا کرنے کے لیے سائیکل چلانے کا تصور آیا ہے؟ چوتھی CIIE آپ کو ہائی ٹیک نمائش کے اس علاقے میں لے جائے گی۔ ناظرین محترم السلام علیکم، پروگرام پاک چائنا ایکسپریس میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان نسرین۔ چوتھی چائنا انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپو CIIE نومبر کے اوائل میں چین کے شہر شنگھائی میں منعقد ہوئی، جہاں دنیا بھر سے مصنوعات نمائش کے لیے رکھی گئی تھی۔ ایکسپو میں کون کون سی نئی ٹیکنالوجیز متعارف کروائی گئی ہیں اور پاکستان کی کون کون سی مصنوعات کی نمائش کی گئی ہے، آئیے آج ہم آپ کو CIIE کی سیر کرواتے ہیں۔ چوتھی چائنا انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپو یا CIIE 4 نومبر کو شنگھائی میں شروع ہوئی۔ کووڈ-19 کے بعد پہلی بار بیک وقت ان سائٹ اور آن لائن منعقد کی گئی، جس سے زیادہ غیر ملکی نمائش کنندگان کو CIIE میں شرکت کرنے اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ذریعے چین کی ترقی کے مواقع شیئر کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم میسر آیا۔ اس چوتھی CIIE کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ ہم ایسی صورتحال میں ہیں جہاں ہمارے سامنے کچھ چیلنجز ہیں، لیکن میں نے سب میں ایک بھرپور جذبہ محسوس کیا ہے اور ہم اپنی معروف اور معیاری مصنوعات اور برانڈز اپنے چینی دوستوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ CIIE بیرونی ممالک اور غیر ملکی کمپنیوں کو موقع فراہم کرتی ہے کہ وہ اپنی مصنوعات کو تشہیر اور چین میں درآمدات کے لیے پیش کریں۔ پاکستان بھی اس ایکسپو کا حصہ ہے اور ہمیں اس ایکسپو سے بہت فائدہ ہوا ہے۔ میں علی فیض ہوں، میرا تعلق افغانستان سے ہے۔ میں دوسری بار CIIE میں آیا ہوں۔ میں افغانستان کے مختلف علاقوں سے مختلف رنگوں کے انتہائی منفرد ڈیزائن کے ہاتھ سے بنے افغانی قالین لاتا ہوں۔ ایکسپو میں ہماری ملاقات ایک پرانے پاکستانی دوست عقیل چودھری سے ہوئی، جو ایک جیولر ہیں۔ انہوں نے 10 دہائی سے زیادہ عرصہ قبل چین میں اپنے خاندانی زیورات کا کاروبار متعارف کرایا تھا۔ یہ ان کی CIIE میں تیسری بار شرکت ہے۔ پچھلے سال کی CIIE کے بعد میرے شنگھائی میں نانجنگ روڈ پر واقع سٹور کی فروخت کا حجم 40 سے 50% بڑھا ہے۔ پاکستان کو بطور مہمان خصوصی ایکسپو کی آن لائن قومی نمائش میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ نمائش میں 9 پاکستانی کمپنیوں نے شرکت کی، خاص طور پر ٹیکسٹائل انڈسٹری اور زرعی مصنوعات سے متعلقہ کمپنیوں نے۔ یہ میرا چائنا انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپو میں شرکت کا پہلا موقع ہے۔ میں یہاں 2 بار آیا تھا، لیکن ایک وزٹر کے طور پر، اس لیے میں پہلی بار باضابطہ طور پر اس تقریب میں شرکت کر رہا ہوں۔ پاکستان کے سالٹ لیمپ نے اس سال کے CIIE میں شاندار شو پیش کیا۔ نمائشی بوتھ پر بہت سے گاہک قیمت جاننے کے لیے آئے۔ پہلے دن 30 سے زائد نمک کے لیمپ فروخت ہوئے اور دوسرے دن تقریباً سبھی پر ریزرو کا لیبل لگا دیا گیا۔ بہت سے چینی صارفین نے لیمپ خریدے۔ ان کا کہنا تھا کہ تقریباً 1 ہفتے کے استعمال کے بعد بہت مؤثر انداز میں ہوا شفاف محسوس ہوئی، چنانچہ انہوں نے یہ بار بار خریدے اور اپنے دوستوں میں بھی متعارف کرائے۔ میں نے اس قسم کا لیمپ پہلے بھی خریدا ہے، اس لیے میں دوبارہ خریدنے آئی ہوں۔ اگرچہ پاکستان کے سالٹ لیمپ CIIE میں پہلی بار آئے، لیکن چینی صارفین اس سے اچھی طرح واقف ہیں، کیونکہ انٹرنیٹ پر فروخت کی بدولت نمک کے لیمپ کی فروخت پہلے ہی کافی مقبول ہے۔ شنگھائی میں ہمارے 5 سے زائد سٹورز ہیں۔ ہمارا ایک آن لائن سٹور ہے اور ہمارا ایک وی چیٹ سٹور بھی ہے، جس سے میرے صارفین کے لیے بہت آسانی ہے۔ چینی صارفین کے مثبت رد عمل کے علاوہ پاکستانی تاجروں نے CIIE میں بڑے معاہدے بھی کیے ہیں۔ کئی چینی کمپنیاں ہمالیائی نمک کی تجارت کے لیے ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہتی ہیں۔ فی الحال ہم CIIE کے ذریعے کم مقدار درآمد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے چینلز کو ہموار کیا ہے، جیسا کہ ہم نے CIIE میں ایک ایجنٹ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اور دیگر کاروباری اداروں کے ساتھ تعاون آگے بڑھے گا۔ اس لیے ہم بڑے پیمانے پر
हिमालयाई नमक दरामद करेंगे। हिमालयाई खाम नमक अमेरिका बड़ी मिकदार में दरामद किया जाता था और फिर दुनिया भर में फरोख्त के लिए हिमालयाई नमक प्रोसेस किया जाता था। चीनी और पाकिस्तानी तजारती कंपनियों के दरमियान बराह रास्त ताउन के जरिए हिमालयाई नमक न सिर्फ पाकिस्तान को ज्यादा कीमत पर फरोख्त किया जाएगा बल्कि चीनी सार्फिन को सस्ता भी दस्तयाब होगा। दरामद या लागत के लिहाज से हम अपने सार्फिन को बेहतरीन मुमकिना फ़वाइद देने की कोशिश करते हैं। नुमाइशी हाल के अलावा CIIE के मुंतजमीन ने अवाम तक रसाई के लिए नुमाइशी मुकाम के बाहर एक बाजार CIIE 365 दिन भी लगाया ताकि सार्फिन के लिए आसानी हो। हमने अप्रैल के आखिर में खोला और रोज़ाना 10,000 से ज़्यादा लोग आते हैं। कुछ बेहतर फरोख्त कुनिंदगान में न्यूजीलैंड से दूध का पाउडर, श्रीलंका की काली चाय और ईरानी जवाहरात वगैरह शामिल हैं। पिछले कुछ दिनों में CIIE के लोगों की आमद बढ़ी है। CIIE बाजार में मुकामी सार्फिन पाकिस्तानी कालीन और नमक के लैंप के मुतलाशी थे। नमक के लैंप की कीमत सिर्फ 200 युआन है। ये बहुत सस्ता है, इसलिए मैंने 2 खरीदे हैं। मैंने इस नमक के लैंप के बारे में सुना है, ये हमारी सेहत के लिए अच्छा है। पहली CIIE में ज़री मसनूआत, दूसरी CIIE में जेवरात और चौथी CIIE में साल्ट लैंप तक पाकिस्तानी अशिया को चीनी सार्फिन की खूब पजीराई हासिल हुई है। पाकिस्तान के लिए CIIE मास कुछ मसनूआत की फरोख्त जैसा सादा मामला नहीं है, बल्कि ये चीन और पाकिस्तान की जानिब से इक्तिसादी और तिजारती तबादलों के फरोग के लिए की जाने वाली कोशिशों का एक हिस्सा है। CIIE उन मिसालों में से एक है जिसने न सिर्फ चीन की इक्तिसादी तरक्की में मदद की है बल्कि बेल्ट एंड रोड से मुंसलिक ममालिक की मदद भी की है। इस मौजू पर मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ वीडियो लिंक के ज़रिए मौजूद हैं CEO ऑफ कंबाइंड ग्रुप ऑफ कंपनीज इन खेचाओ ज़ेजियांग चाइना जनाब अब्दुल्ला अफरीदी साहब। तो अगले मरहले में पाकिस्तान अपनी कौन सी मसनूआत की बरामदात को बढ़ाना चाहेगा? डेफिनेटली पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है और वहाँ पे जितने भी ज़राअत रिलेटेड आइटम्स है और ख़ासकर इस हुकूमत ने ये इनिशिएटिव ली है कि जितने भी आइटम्स हमारे हैं अगर उसमें माइनिंग है, माइनिंग के अलावा हमारे ज़राअत के आइटम्स है, ज़राअत के साथ जो भी हैंडमेड जो जितना जिस पे कल्चरली जिस चीज़ों पे काम हो रहा है तो उन सब में बहुत से डिफरेंट आई हुई है और दुनिया यानी डिफरेंट ममालिक के लिए अभी पाकिस्तान के दरवाजे खुल दिए गए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपनी एक मायार तक लेकर जाए। नाज़रीन, CIIE के खुसूसी प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। CIIE मुख्तलिफ ममालिक के लिए अपनी मसनूआत की नुमाइश और इक़्तिसादी व तिजारती रवाबित को मजबूत करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो CIIE में शामिल पाकिस्तानी मसनूआत के अलावा और कौन सी पाकिस्तानी मसनूआत बैनुल अक़वामी मार्केट में दाखिल हो सकती हैं और बैरून मुल्क कस्टमर ग्रुप्स को मुतासिर करने के हवाले से माहिरीन का क्या मशवरा है? तो आइए मिलकर हमारी रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए तिजारत और सरमायाकारी अब्दुल रज़ाक दाऊद ने ऐलान किया कि माली साल 2020-2021 में चीन के लिए पाकिस्तान की बरामदात में 34% का इजाफा हुआ। चीन और पाकिस्तान के दरमियान तिजारत का कुल हजम 2020 के मुकाबले में 50.8% बढ़कर 12.6 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो कोविड-19 वबा के बायस 8.37 बिलियन डॉलर था। दोनों ममालिक के दरमियान बड़ी मसनूआत की तिजारत में इजाफे में टेक्सटाइल, समुद्री ग़िज़ा और ज़री मसनूआत में साल ब साल इजाफा हुआ है, जिससे पाकिस्तान की इक़्तिसादी बहाली को फ़रोग़ मिला है और इसकी चीन के लिए बरामदात में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान की चीन को अजनास की बरामदात में बुलंद इजाफा बिलाशुबा एक बड़ी कामयाबी है। ज़रई मसनूआत के हवाले से मेरे ख्याल में पाकिस्तान बड़ी तादाद में चावल और फल चीन को बरामद कर सकता है। ख़ास तौर पर आम चीन इतना ख़रीद सकता है जितना पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान का बासमती चावल दुनिया के सबसे मशहूर चावलों में से एक है। एक ख़ास खुशबू के साथ दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी इसकी तलाश में है, जिनका अहम खुराक के तौर पर चावल पर इन्हिसार है। हाल ही में ऐलान किया गया था कि हुकूमत की मुअस्सर ज़रई पॉलिसियों की बदौलत माली साल 2020 में पाकिस्तान की चावल की बरामदात $3 बिलियन तक बढ़ने की तवक्को है।
काम होता है। फिर दूसरा हमने इसको सिस्टम को मॉडर्नाइज़ किया, तो अब हमें वो जो सप्लाई चेन का इशू है वो नहीं है। पाकिस्तानी जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने बहुत हद तक अपना आपको इम्प्रूव कर लिया है। अगर आप देखेंगे 30-32 साल से जब से ये प्राइवेट सेक्टर में एक्सपोर्ट अलाउ हुई है, तो बिलियंस ऑफ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हुई है। और वो मेन इसी थी कि सप्लाई चेन को इम्प्रूव किया जाए और क्वालिटी की एश्योरेंस हो। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से चावल जो है दुनिया के हर मुल्क में एक्सपोर्ट हो रहा है। यूएसए में जा रहा है, कनाडा में जा रहा है, यूरोप में जा रहा है, चाइना एक्सपोर्ट हो रहा है, अफ्रीका एक्सपोर्ट हो रहा है। तो कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे चावल पाकिस्तानी ना जा रहा हो। कि ओवर द ईयर्स अभी जब से पाकिस्तान ने वहाँ से पीटीए के बाद एफटीए किया है, तो हमारी राइस एक्सपोर्ट्स ख़ास तौर पे चाइना में बढ़ती जा रही है और अभी हम तकरीबन 5 लाख टन की एक्सपोर्ट कर चुके हैं पाकिस्तान से चाइना। शम्सुल इस्लाम इंटेग्रा ट्रेड एंड मार्केटिंग के मालिक भी हैं, जो कि 32 साल से एक खानदानी कारोबार है। चुनांचे उन्होंने पाकिस्तान की चावल की बरामदात की तरक्की का मुशाहिदा किया है। तो हमने उस वक्त क्योंकि इनिशियल स्टेज थे, एक्सपोर्ट अलाउ हुई थी, तो अपनी कॉस्ट को भी मेंटेन करने के लिए हमने जो कुछ चीज़ें लोकल बनवाई, कुछ चाइना से ली, कुछ थाईलैंड से लिया, कुछ हमारे और दूसरी चीज़ों की मशीनरी आ गई, तो उसको ब्लेंड करके एक मशीनरी बनाई। अब हम जो है एक नया जो प्लांट हमारा अनकरीब लगेगा, क्योंकि अभी हमारा सीज़न स्टार्ट नहीं हुआ, तो उसको हम पूरा तकरीबन हमारा एक चाइनीज़ काउंटर पार्ट के साथ हमारी डीलिंग हुई है और वो यहाँ पर कोई 100 टन का पर आवर का प्लांट यहाँ पे हमारे साथ मिलकर लोग लगाने के लिए दिलचस्पी ले रहे हैं, क्योंकि उनको एक हमारी क्वालिटी का जो है पता है कि हम किस तरह से उन्होंने सिस्टम हमारे देखे हैं यहाँ पे, तो वो उनको ट्रस्ट है कि और लॉन्ग टर्म बिजनेस में ही दोनों साइड पे विन विन सिचुएशन होता है कि आपका इंपोर्टर भी सेटिस्फाई है, आपके एक्सपोर्टर को भी सही हो रहा है। ताहम बड़ी चीनी मार्केट के सामने नई मुश्किलात ने कुछ पाकिस्तानी बरामद कुनंदगान और चीनी दरामद कुनंदगान के लिए रुकावट पैदा की है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें अप्रूव करें यहाँ पर, क्योंकि चाइना का आपको बताऊँ कि इंपोर्ट का ये है, बहुत सारे आइटम में उन्होंने ये रखा हुआ है कि वहाँ पे चाइनीज़ इंपोर्ट क्वारंटाइन जो है उनकी अप्रूवल होती है उन कंपनीज़ की जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं गैर ममालिक से, और फिर उसके बाद कोटा सिस्टम है कि कोटा होगा, क्योंकि अगर आप टैरिफ पे जाते हो तो टैरिफ बहुत हाई है, तो वहाँ पर चीन के WTO से इल्हाक के बाद से ज़रई मसनूआत की दरामद पर एक मुआहदा हुआ है, ताहम घरेलू किसानों के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोटा सिस्टम मौजूद है। मिसाल के तौर पर चीन के चावल के दरामदी टैरिफ कोटा में 2.66 मिलियन टन लंबे दाने के चावल और 2.66 मिलियन टन छोटे दाने के चावल शामिल हैं। सरकारी कंपनियों को 1.33 मिलियन टन का दरामदी कोटा दिया जाता है, जबकि निजी इदारों को भी 1.33 मिलियन टन का कोटा मिलता है। हमारे लिए दरामदात को वसी करना नामुमकिन है, क्योंकि वो चावल जो चीनी सार्फिन के लिए जाना पहचाना है, जैसे कि थाई खुशबूदार चावल, वियतनामी खुशबूदार चावल और हिंदुस्तानी चावल, उसे 1.33 मिलियन टन के दरामदी कोटे में शामिल किया गया है। कोटा एक किस्म की हद है। कोटा में टैरिफ की शरह 1% है और कोटा से बाहर टैरिफ की शरह 65% है। ताजिर यकीनी तौर पर ज़्यादा टैरिफ पर दरामद नहीं करेंगे। अगर उनके पास कोई कोटा नहीं है तो वो दरामदी कारोबार पर एहतियात से गौर करेंगे। चावल के अलावा भी बहुत सी ज़रई मसनूआत पाकिस्तान से चीन की दरामदात की फहरिस्त में शामिल हैं और तरीकाकार को तेज कर दिया गया है। चंद माह कबल पाकिस्तान में चीन के सफीर नोंगरोंग ने एक इंटरव्यू में कहा था कि चीन के लिए ज़रई मसनूआत की बरामदात का अमल तेज कर दिया गया है। प्याज, आलू, चेरी और डेयरी मसनूआत समेत चीन को बरामद की जाने वाली पाकिस्तानी ज़रई मसनूआत के मुआयना और करंतना के तरीकाकार को तेज कर दिया गया है। इस साल चीन को प्याज की बरामद से मुतल्लिक एक प्रोटोकॉल पर दस्तखत किए जाएंगे। पाकिस्तान में चावल के 9 नए बरामदी इदारों ने रजिस्ट्रेशन कराई है और पाकिस्तान में पाँव और मुंह की बीमारियों से पाक जोन की तामीर आगे बढ़ चुकी है। अगर कमिटमेंट होती है चाइना से हमारी प्याज के एक्सपोर्ट से मुताबिक, तो हमें बड़ा फ़ायदा होगा। इससे जो है हमारा जो काश्तकारों को नुकसान हो रहा है, इस नुकसान से जो है काश्तकार बचेंगे। मुल्क जो है वो भरपूर तरक्की करेगा और यहाँ का काश्तकार भी इंशाल्लाह जो है वो अपने पैरों पे खड़ा होगा। ऑनियन की जो हमारे पास 2 वैरायटी चल रही है, नसरपुरी और फुलकारा, इनकी शेल्फ लाइफ नहीं है। ये एक्सपोर्ट हम करते हैं, कोई दूर ममालिक में जाते हैं तो उसकी वजह से प्याज जो है वो कटाई के बाद जो है उस फूटने लग जाता है। ये प्याज जो है फूटने लग जाता है, अंगूर जाता है, जिससे फिर जो है वैल्यू जो है उसकी बिल्कुल डिग्रेड हो जाती है। कई कंटेनर जो है वो बिल्कुल रिजेक्ट हो जाते हैं। हालांकि वो एक्सपोर्टर को भी नुकसान होता है और काश्तकार की वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अगर इसके अंदर जो है
रिसर्च होगी और ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाएंगे तो हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा और हमारा जो प्याज है वो वैल्यू एडिशन करेगा, दिगर ममालिक में जाएगा, डॉलर भी आएंगे, हमारा मुल्क तरक्की करेगा। हमें फौरी तौर पर एक कुछ नए इक़साम की ज़रूरत है ताकि हमारा प्याज जो है दुनिया भर में उसकी वैल्यू एडिशन बढ़े और दुनिया भर में एक्सपोर्ट हो सके। पाकिस्तानी ज़रूरी मसनूआत जैसे आम, लीमू और चावल का चीनी मार्केट में दाखिला हो या मुस्तकबिल में प्याज, आलू, चेरी और डेयरी मसनूआत की बरामदात का फ़रोग, चीन बिलाशुबा पाकिस्तान के लिए एक अहम नई मंडी बनेगा। मैं हमेशा उम्मीद करता हूं कि अगर पाकिस्तान की चीन की पाकिस्तान को बरामदात की सतह तक पहुंच जाएं ताकि तिजारत का तवाज़ुन हासिल किया जा सके, तो दो तरफ़ा तिजारत जल्द ही $30 बिलियन से ज़्यादा हो जाएगी। अगर ये कई सालों की कोशिश से $100 बिलियन तक पहुंच जाती है तो पाकिस्तान जनूबी एशिया में चीन का सबसे बड़ा तिजारती हिस्सेदार बन जाएगा। नाज़रीन, CIIE के हवाले से बहुत सारी मसनूआत देखने के बाद आइए एक नज़र डालते हैं कि इस एक्सपो में कौन सी हाई टेक प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। मेरा नाम मोहम्मद साबिर जान है और मैं पाकिस्तानी ताजिर हूँ और मैं पिछले 27 सालों से चाइना में मुकीम हूँ। ये मेरा चौथा सेक्शन है। मैं चाइना इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो पे आया हूँ। आइए मोहम्मद साबिर जान के साथ इस साल की CIIE के हाईटेक हिस्से में आते हैं। एक्सपो में ऑटो नुमाइश का रकबा 30,000 मुरब्बा मीटर है। पता चला है कि CIIE की चौथी ऑटो नुमाइश में गाड़ियाँ, ऑटो पार्ट्स, ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो इंसलरी प्रोडक्ट्स और मेंटेनेंस सप्लाईज, ऑटो न्यू एनर्जी प्रोडक्ट्स और खुद मुख्तार ड्राइविंग प्रोडक्ट्स शामिल हैं। इनमें एक स्मार्ट बस भी है जो काबिल दीद है। हमारी हवाई बस इसलिए डिज़ाइन की गई है कि कारों को हवाई नकलो हमल के लिए हमारे ट्रैफिक प्रोसेसिंग सेंटर सिस्टम में उड़ान भरने और जाने की इजाज़त दी जाए। हवा में उड़ने के इस ख्याल को पाया तकमील तक पहुंचाने का ये नुक्ता नज़र दरअसल अपने नए ट्रैवल चैनल के रास्ते के तौर पर स्काई फील्ड को खोलने पर मबनी है, जिसका मकसद ट्रैफिक के मौजूदा दबाव को दूर करना है। इस हवाई बस के शुरू के डिज़ाइन में बहुत सारे इंसान दोस्त डिज़ाइन शामिल किए गए हैं, जिसकी वजह से ये न सिर्फ एक ख्याली गाड़ी है बल्कि एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी मुस्तकबिल में तवक्को की जा सकती है। बस की एक और खसूसियत ये है कि चाहे ये हवाई बस हो या नकलो हमल का मरकज़, इसे न सिर्फ हमारे सफ़र के लिए ट्रांसपोर्टेशन स्टेशन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, बल्कि इसे ज़ाती कंट्रोल के लिए अवामी आराम के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर हम बस के अंदर अपने निजी सिनेमा और फिर कैफ़े और यहाँ तक कि क्लिनिक को हस्ब ज़रूरत बना सकते हैं। इसका मकसद हमारे मुस्तकबिल के सफ़र को ज़्यादा आसान और ज़्यादा आरामदेह बनाना है। मुझे यकीन है कि इस निज़ाम की बेहतरी और ऑपरेशन से हम मुस्तकबिल में आसमान के करीब होंगे। ये मिसाली हवाई बस न सिर्फ मौजूदा ट्रैफिक के दबाव का मसला हल कर सकती है, बल्कि इसकी बैटरी भी एक नई माहौल दोस्त बैटरी है। ये गाड़ियों की इस साल की नुमाइश के मरकजी नुक्ते कार्बन डाइऑक्साइड का इंतहाई अखराज और कार्बन गैर जानबदारी के ऐन मुताबिक है। हमारा निज़ाम हाइड्रोजन फ्यूल सिस्टम के जरिए पावर सोर्स फ्यूल सेल के तौर पर चल रहा है। फिर ये फ्यूल सेल 160 किलोवाट तक बिजली दे सकता है। ये इत्मीनान दिला सकता है कि हम एक ही वक्त में 1 घंटे में 2 रेसिंग कारों को मुकम्मल तौर पर चार्ज कर सकते हैं। तरीसना इसे दूर दराज इलाकों में हंगामी बिजली के फराहमी के निज़ाम में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा बिजली की बंदिश की सूरत में इसे हंगामी रोशनी के ज़राए और बिजली के अहम ज़रिए के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कहा जा सकता है कि इसे हाई पावर जनरेशन के लिए महफूज तवानाई के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कार्बन फ्री एक माहौलियाती तब्दीली के बारे में। ये जो इतना बड़ा स्टेप इन्होंने उठाया है कि हम हाइड्रोजन से जनरेट करके हाइड्रोजन को जनरेट करते इंजन में लेकर आते हैं और इंजन से पानी से हम जो ये इसको बिजली का जो हम गाड़ियों के लिए जो तवानाई वो करते हैं। आप ये देखें कि ये हाइड्रोजन को कन्वर्ट करते हैं इस जनरेटर में, जिससे पानी के साथ इसको जनरेट करते हैं और साथ ही ये कार्बन डाइऑक्साइड फ्री है। यानी कि माहौलियाती तब्दीली पे इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा कि हमारा मुल्क ख़ासकर लाहौर दुनिया के पोल्यूटेड
शहरों में माहौलियाती उसमें तब्दीली में लाहौर इस वक्त दुनिया के सबसे आलूदा शहरों में से एक है। तो हम अगर जब इस स्पॉट पे हम जाते हैं तो हमें नज़र आता है कि हमारे मुल्क में ऐसी चीज़ें ऐसी हाईटेक और ऐसी जदीद तब्दीली भी आनी चाहिए कि हम अपने मुल्क को, जो आजकल जो बैटरी पे गाड़ियाँ चलती हैं, ये आने वाला जो टाइम है वो ऐसा होगा कि जिसमें हमें ज़ीरो कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी चाहिए, कि जो हमारा जनाब हमारे जो कार्बन की जितनी भी हमारी जो कंजम्पशंस हैं उसको ख़त्म करें। गुज़श्ता 3 बार की CIIE में कार के पवेलियन में हमेशा कुछ ऐसी चीजें नुमाइश में होती आई हैं जिन्होंने लोगों पर गहरा तासुर छोड़ा और CIIE की नुमाया खुसूसियात में से एक बन गई। अगरचे इस साल की CIIE के ऑटोमोबाइल पवेलियन में नजरों को फौरन भाने वाली कुछ चीजें नुमाइश में गायब हैं, इसके बावजूद भी ये मैन्युफैक्चरिंग के मौजूदा तरक्की के रुझान की क़यादत कर रही है। ये देखा जा सकता है कि इस साल की CIIE की गाड़ियों की नुमाइश सब्ज, जदीद और टेक्नोलॉजी की क़यादत को मरकजी तवज्जो के तौर पर लेती है, जिसमें जदीद तरीन तरक्की की कामयाबियों और दुनिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के मुस्तकबिल के नुक्ता नज़र को जामे तौर पर दिखाया गया है। हवाई बस के अलावा एक हाईटेक प्रोडक्ट भी है जिसने बहुत ज्यादा तवज्जो हासिल की है। ये साइकिल चला रहा है, साथ के साथ ये बिजली जो है यहाँ से बनती हुई यहाँ से कन्वर्ट होते हुए ये यहाँ पर आ रही है, आप यहाँ के एम्पेयर्स देख सकते हैं। ये एम्पेयर्स चल रहे हैं, ये एम्पेयर्स जो बन रहे हैं ये इसके साइकिल चलाने से, ये गर्दिश से ये सारा बिजली बन रही है। और इस बिजली का जो एम्पेयर ये यहाँ से फेंक रहा है उससे यहाँ पे हम अपनी छोटी मोटी जो भी मशीनरी हम लगा रहे हैं हम इसको चला सकते हैं, हम इनसे काम ले सकते हैं। तो ये वो जिद्दत है जिसकी हमें ज़रूरत है आज के ज़माने में, जब पूरी दुनिया कंप्यूटराइज हो गई है, जब हर जगह पे हाईटेक नंबर 1 चल रहा है, 5G चल रहा है, हाईटेक से हमें भी फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। जब पैडलिंग पावर जनरेशन और प्रिंटिंग को एक साथ जोड़ा जाता है तो कुदरती तौर पर कम कार्बन और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल जहन में आता है। ये देखें, ये यहाँ से ये जो बिजली जो शुरू हुई है, जो बिजली जनरेट हुई है, उससे ये हम लोगों ने इस फ़ोटोस्टेट कॉपी से हमने इसको रन किया और यहाँ से हमने फ़ोटो कॉपी निकाली है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो ग्रीन एनर्जी से हम लोग काम कर सकते हैं। हमें किसी बिजली की ज़रूरत, जो हमारे पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो कमी है वो बिजली की कमी है। हमें अपनी बिजली की कमी को इसी तरीके से पूरा करना पड़ेगा, या हमें ग्रीन एनर्जी में आना पड़ेगा, या हमें सोलर में आना पड़ेगा, थर्मल में आना पड़ेगा। आबो हवा की तब्दीली और तेजी से सख्त होते माहौल के साथ दुनिया ने काबिल तजदीद वसाइल और साफ वसाइल की रिसाइकलिंग की अहमियत को महसूस किया है। तो क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि जब इस्तेमाल शुदा मशरूबात की बोतलें टेक्नोलॉजी से टकरा जाएं तो क्या चिंगारियां पैदा हो सकती हैं? ये देखिए, ये मुख्तलिफ कलर में हम बना सकते हैं। ये 65% इसका जो है हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और ये वो चीज़ है जो हमारे इंडस्ट्रियल जो हमारे जो वो हैं जो भाई हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये हम ऐसे मटेरियल हमारा जो है हमारा गुजरांवाला में, हमारे फैसलाबाद में, सियालकोट में, कराची में, लाहौर में, हमारे मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल जोन में ये हमारे काम आते हैं। फजूल मशरूबात की बोतलों से बने लैंप इन इकसाम में से सिर्फ एक हैं। मुतबादिल खाम माल और काबिल तजदीद मवाद की तहकीक और तरक्की भी मुस्तकबिल की तकनीकी तरक्की के लिए एक सिमत की नुमाइंदगी करती है। ये आज की जदीद टेक्नोलॉजी है जो हमने यहाँ चाइना इंपोर्ट इंटरनेशनल एक्सपो में अपने पाकिस्तानी जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो हमारे पाकिस्तानी जो बिजनेसमैन हैं, उनके लिए हम ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बैरूनी दुनिया के लिए आला सतह के इफ्तिताह के नए दौर को फ़रोग़ देने के लिए चीन के लिए एक अहम प्लेटफार्म के तौर पर CIIE ने कार्बन न्यूट्रल प्रोजेक्ट जैसे इक़दामात की एक सीरीज के निफाज के जरिए बैनुल-अक़वामी सिफर कार्बन और सब्ज़ तावन को फ़ाल तौर पर अंजाम देने के लिए तरक्की के लिए ग्रीन बेंचमार्क बनाने के लिए कोशिश की है। कम कार्बन और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का हाईटेक सुपर इम्पोजिशन मुस्तकबिल की तरक्की का मौजू बन गया है। नाज़रीन, प्रोग्राम भाग चाइना एक्सप्रेस देखने का बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते मिलेंगे। खुदा हाफिज।